Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, under which section is the concept of unfair trade practices covered after the amendment of the Consumer Protection Act in 2019? Clause R of subsection 1 of section 2, section 3, section 5, subsection 47 of section 2. 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद अनुचित व्यापार प्रथाओं की अवधारणा किस धारा के अंतर्गत आती है? धारा 2 की उपधारा 1R, धारा 3, धारा 5 या धारा 2 की उपधारा 47? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सबसेक्शन 47 ऑफ सेक्शन 2. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 2 की उपधारा 47. Clause R of subsection 1 of section 2 of the Consumer Protection Act 1986 deals with unfair trade practices. After the amendment in the year 2019, the concept of unfair trade practices has been covered under subsection 47 of section 2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 की उपधारा 1 R अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित है. वर्ष 2019 में संशोधन के बाद अनुचित व्यापार प्रथाओं की अवधारणा को धारा 2 की उपधारा 47 के तहत कवर किया गया है. Next question is, according to Article 20, Clause 3 of the Constitution of India, which of the following rights is protected? Right to free legal aid, right to not be compelled to be a witness against oneself, right to appeal against a conviction, or right to be informed of the grounds of arrest. भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 खंड 3 के अनुसार कौन सा अधिकार सुरक्षित है? निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर ना होने का अधिकार, किसी दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील करने का अधिकार, या गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी का अधिकार? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट टू नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट वनसेल्फ. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर ना होने का अधिकार. आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. 1. No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act, charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. 2. No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. 3. No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण. पहला, अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के कार्यान्वयन के समय लागू कानून के उल्लंघन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, ना ही उस दंड से अधिक दंड दिया जाएगा जो अपराध के समय लागू कानून के तहत लगाया जा सकता था. दूसरा, किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा. तीसरा, किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. Next question is, which court has jurisdiction over an application concerning the guardianship of a minor's person? High Court, Family Court, District Court और सुप्रीम कोर्ट. किसी नाबालिग व्यक्ति की संरक्षिता से संबंधित आवेदन पर किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? उच्च न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, जिला न्यायालय या उच्चतम न्यायालय? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिला न्यायालय. Recently in the Dheeraj versus Srimati Chetna Goswami case, the Allahabad High Court ruled that under subsection 1 of section 9 of the Guardians and Wards Act 1890, ordinary residence of a minor does not include temporary relocations such as for education at the time of a custody petition. As per the section 9 of the Guardians and Wards Act 1890, the applications regarding the guardianship of a minor's person must be made to the district court. The district court must have jurisdiction in the place where the minor ordinarily resides. हाल ही में धीरज बनाम श्रीमती चेतना गोस्वामी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संरक्षक और वार्ड अधिनियम 1890 की धारा 9 की उपधारा 1 के तहत एक नाबालिग के साधारण निवास में हिरासत याचिका के समय शिक्षा के लिए अस्थायी स्थानांतरण शामिल नहीं है. संरक्षक और वार्ड अधिनियम 1890 की धारा 9 के अनुसार किसी नाबालिग व्यक्ति की संरक्षिता के संबंध में आवेदन जिला न्यायालय में किया जाना चाहिए. जिला न्यायालय का क्षेत्राधिकार उस स्थान पर होना चाहिए जहां नाबालिग आमतौर पर निवास करता है. Next question is, under subsection 1 of section 14 of the Hindu Succession Act 1956, how is any property possessed by a Hindu female held? As a tenant, as a full owner, as a joint owner, or as a limited owner? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 की उपधारा 1 के तहत किसी हिंदू महिला के पास मौजूद कोई भी संपत्ति कैसे रखी जाती है? किराएदार के रूप में, पूर्ण स्वामी के रूप में, संयुक्त मालिक के रूप में
या एक सीमित स्वामी के रूप में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एज अ फुल ऑनर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्ण स्वामी के रूप में। Recently, in the Mukutlal versus Kailash Chand and others case, the Supreme Court ruled that under subsection 1 of section 14 of the Hindu Succession Act 1956, a Hindu female must be in possession of a Hindu undivided family property to assert absolute ownership. Subsection 1 of section 14 declares that any property possessed by a Hindu female is held by her as full owner. This provision emphasizes her absolute and unrestricted rights over the property. हाल ही में मुकुटलाल बनाम कैलाश चंद्र अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 की उपधारा 1 के तहत पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए एक हिंदू महिला को हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति पर कब्जा होना चाहिए। धारा 14 की उपधारा 1 घोषित करती है कि किसी हिंदू महिला के पास मौजूद कोई भी संपत्ति पूर्ण मालिक के रूप में उसके पास होती है। यह प्रावधान संपत्ति पर उसके पूर्ण और अप्रतिबंधित अधिकारों पर जोर देता है। द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लिमिटेशन टू फाइल एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 ऑफ CPC? 30 days, 60 days, 90 days और none of these. CPC के आदेश 9 नियम 7 के तहत आवेदन दाखिल करने की सीमा क्या है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, none of these. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। There is no limitation to file a petition under Order 9th Rule 7 CPC. It is his last submission that the question whether the second defendant is a necessary party to the suit filed by the plaintiff for specific performance will have to be determined by the trial court and not by the revisional court. CPC आदेश 9 नियम 7 के तहत याचिका दायर करने की कोई सीमा नहीं है। यह उनका अंतिम निवेदन है कि सवाल करें कि क्या दूसरा प्रतिवादी विशिष्ट व्यवहार के लिए वादी द्वारा दायर मुकदमे में एक आवश्यक पक्ष है का निर्धारण ट्रायल कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए, न कि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा। Before we wrap up, here's a question for you. A suit in representative capacity can be filed by virtue of under Order 1 Rule 8A of CPC, under Order 1 Rule 10A of CPC, under Order 1 Rule 8 of CPC और under Order 1 Rule 9 of CPC. प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा किसके आधार पर दायर किया जा सकता है? CPC के आदेश 1 नियम 8A के तहत, CPC के आदेश 1 नियम 10A के तहत, CPC के आदेश 1 नियम 8 के तहत या CPC के आदेश 1 नियम 9 के तहत। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।